আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মই পাপৰি প্ৰথমে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ বৃহৎ অভিযান কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বাসগৃহৰ লগতে 9টা স্থানত অভিযান ইডিৰ কেজৰিৱালৰ জেৰাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বাসগৃহত পুৱাৰে পৰা ইডিয়ে চলাইছে অভিযান দিল্লীৰ হুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত ইডিৰ অভিযান ইজনৰ পিছত হিজন আপৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে ইডিয়ে অভিযান চলাইছে বা আজি জেৰা চলোৱা হ'ব কাৰণ হুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ কৈছো যে হুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত ইডিয়ে জেৰা চলাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ঠিক তাৰ পূৰ্বে ৰাজকুমাৰ আনন্দ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে তেওঁৰ বাসগৃহত অৰ্থাৎ তেওঁৰ বাসগৃহৰ লগতে 9টাকৈ স্থানত আজি ইডিয়ে অভিযান চলাই আছে কেজৰিৱালৰ জেৰাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বাসগৃহত পুৱাৰে পৰা ইডিয়ে অভিযান চলাইছে দিল্লীৰ হুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত ইডিৰ অভিযান আৰু এতিয়া আপৰ প্ৰায় কেইগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে ইডিয়ে অভিযান চলাইছে আৰু আজি ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ এই বাসগৃহত কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বাসগৃহত ইডিয়ে অভিযান চলাইছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি দেশজুৰি এতিয়া এইটোৱে হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ বিষয় আজি এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডিয়ে জেৰা চলাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক দিল্লীৰ হুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিছিল কেজৰিৱালক সোধা পোছাৰ সময়তে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে 16 এপ্ৰিলত সিবিআইয়ে সোধা পোছা কৰিছিল কেজৰিৱালক বৰ্তমান হুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত কাৰাগাৰত আছে মনীষ সিসোদিয়া আৰু আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে 2 নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আপৰ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ লিপ্ত হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে আতিশীয়ে যদি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেন্তে কোনে ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰ্চাত আছে 3 মন্ত্ৰীৰ নাম গোপাল ৰায় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী আতিশী শিক্ষামন্ত্ৰী দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশীৰ নামো চৰ্চাত আছে কেজৰিৱালৰ ঠাইত সৌৰভ ভৰদ্বাজো হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী 3 গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে গোপাল ৰায় পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী আতিশী শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আন গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজ এই 3 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ ইতিমধ্যে আপৰ নেতাসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আজি ইডিয়ে জেৰা চলোৱাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমুখত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এতিয়া এনেদৰে ইডিয়ে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰা বিষয়তে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিত ইয়াৰ পূৰ্বে সাংসদ সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে একাধিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ইডিয়ে অভিযান চলাব সেই সম্ভাৱনাৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আজি পুৱাই আন এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে 9টাকৈ স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হুৰা নীতি গ্ৰহণ আৰু হুৰা নীতি তথা আবকাৰী নীতি বাতিল কৰাৰ বিষয়ক বিয়াগুম আৰ্থিক কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল 300 কোটিৰো অধিক বিত্তীয় কেলেংকাৰী তথা খেলিমেলিৰ এই অভিযোগত ইডিয়ে ইতিমধ্যে মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন আবেদনো নাকচ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ বিপদ সন্মুখত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া এটা বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি আখ্যা দিব বিচাৰিছে আৰু আপৰ যিসকল তেওঁলোক মন্ত্ৰী বা তেওঁলোকে বা জ্যেষ্ঠ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকৰ মতে বা আতিশী যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মতে যে আতিশী কোৱা অনুসৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে এয়া হৈছে বিজেপিক চেলেঞ্জ কৰাৰ এক প্ৰতিশোধ আৰু প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ বিজেপিয়ে এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আপৰ নেতাসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ইডিয়ে আজি জেৰা চলাব ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিলত এপ্ৰিল মাহতো
কেজৰিৱালক CBI সোধা পোছা কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত সোধা পোছা কৰাৰ অন্ততে যিহেতু যাবলৈ দিয়া হৈছিলে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, যদিহে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জেললৈ যায় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ চলিব কেনেকৈ, দিল্লী চৰকাৰ কেনেকৈ চলিব, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। शंकर आनंद से हमारे शंकर, क्या होने वाला है और क्या कुछ बोल रहे जो नेता है आपके, वो लोग क्या कुछ बोल रहे? अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि जेल से ही सरकार चलेंगे क्या, इस तरह के कुछ मामले भी, मतलब इस तरह की एक वहां पे गुंजाइश चल रही होगी। शंकर देखिए, जो सवाल है, सवाल एक आम आदमी का सवाल है और इस तरह के सवाल जरूर आम आदमी इस तरह के पूछते हैं कि जिस तरह से कई मंत्रियों के खिलाफ लगातार दिल्ली के जो कई मंत्री हैं उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है, कई ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसका वास्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस तरह के सवाल आम आदमी का जरूर होता है कि कई लोग जेल जा चुके हैं, कई लोग अभी लाइन में खड़े हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। तो ये सवाल वाकई में जायज बनता है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी से जुड़े हुए मामलों की अगर बात करें तो जांच एजेंसी का कहना है कि देखिए, जिस तरह से इस मामले की पड़ताल की जा रही है, खासतौर पर दिल्ली सरकार से जुड़े हुए आबकारी जो नीति का जो पुराना मामला था, उस मामले में जब मामले को दर्ज करने के बाद जिस तरह से ईडी की प्रक्रिया इस वक्त में काम कर रही है, तो जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले थे, उसी के सबूतों के आधार पर इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कुछ समय तकरीबन 1.5 साल के अंदर देखा जाए तो कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की से पूछताछ हो चुकी है और जो दर्ज स्टेटमेंट है और जो अभी तक इस मामले में सबूतों को जिस तरह से इकट्ठा किया गया है, उसी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का समन भेजा गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं आपको देना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है शंकर कि वो आज नहीं आ रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि आज वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे हैं और इस मामले में लिखित तौर पे उनके द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई है। लेकिन ईडी के द्वारा अभी तक इस मामले की कोई ऑफिशियल मतलब औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। और जिस तरह से अब मुझे आपका अगला जो सवाल जो आप मुझे पता है, जो मैं एक बार आपको यहाँ थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा आप रुकिए, मैं इस बात को मैं हमारे लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ दर्शकों को जे আজি अरविंद केजरीवाल ईडीर सन्मुखीन নহয়। ইডিয়ে যে জেৰা চলোৱাৰ কথা আজি 2 নৱেম্বৰ, যেহেতু ইডিয়ে আজি জেৰা চলোৱাৰ কথা আছিলে, গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, কাৰণ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণত যাব। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ইডিয়ে যি সমন জাৰি কৰিছিল বা আজি ইডিয়ে জেৰা চলাব বুলি যেহেতু চৰ্চা চলি আছিল, তাৰ ওপৰত এই সূত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে আমাক জনোৱা অনুসৰি যে আজি অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণে ইডি তৰফৰ পৰা জনোৱা হোৱা নাই যদিও কিন্তু জেৰাৰ सम्मुखीन नहीं आज केजरीवाल। शंकर फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। शंकर, दूसरी बात आप मेरी दूसरी सवाल के जवाब दे रहे हैं अभी, और साथ में और एक सवाल मैं आपको पूछने जा रही हूँ कि इकट्ठा आप बताइएगा कि अभी देखिए सख्ती तो बरत ही रही है, मनीष सिसोदिया को भी हम देखें तो जमानत नहीं मिल रही है, अगर केजरीवाल की पूछताछ के बाद जेल जाना पड़े तो होगा क्या? निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है ये आपका सवाल बहुत सटीक सवाल है, क्योंकि ये सवाल का ही जवाब मैं देने के प्रयास कर रहा था और यही मैं बताना ही चाह रहा था। देखिए, सबसे पहला और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आज अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। तब अब यहाँ सवाल सबसे पहले उठता है कि अगर वो आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आएंगे तो आगे जांच एजेंसी क्या कर सकती है, क्या क्या एक्शन कर सकती है। तो इस मामला को भी जानना समझना बेहद जरूरी है। तो इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जांच एजेंसी के द्वारा सबसे पहले एक और जो सम्मन है वो जारी किया जाएगा, पूछताछ का एक और सम्मन जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि आज देर शाम तक जांच एजेंसी के द्वारा एक पूछताछ का एक नया सम्मन जारी किया जाएगा और एक नई तारीख मुकर्रर की जाएगी और वो बताया जाएगा कि अब उनको कब पूछताछ के लिए आना है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। और दूसरी अगर बात करें कि अभी देखिए, अभी पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है वो जांच एजेंसी की एक कॉमन सा एक ये प्रक्रिया है। तो उसमें पहले सबसे पहले उनको पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा और उसके बाद जो तमाम जो एक्शंस हैं वो हो सकता है। तो पूछताछ की प्रक्रिया कई बार होती है,
2 बार, 3 बार, 4 बार भी किया जा सकता है। तो अभी केजरीवाल को, मुख्यमंत्री केजरीवाल को और एक नया तारीख निर्धारण किया जाएगा। तो और हम जानना चाहेंगे आपसे कि और एक मंत्री के घर पर अभी ईडी का अभियान चल रहा है, राजकुमार अनंत, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज 18 पे ही इस खबर को ब्रेक किया गया था। और जिस तरह से राजकुमार आनंद की बात करें तो ये दिल्ली सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ ये अभी कुछ समय पहले ही उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। और जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो 7 करोड़ रुपए के संदिग्ध एक हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़ा यह मामला है। दरअसल जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी DRI है, DRI के द्वारा पिछले कुछ समय पहले एक केस रजिस्टर किया गया था, और उसी मामले को बाद में ईडी ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है। उसी के तहत तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और 1 दर्जन जो लोकेशन है उसमें कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जो है, इस वक्त में जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अभी मुश्किलें जो है आम आदमी पार्टी की वो कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो कई मंत्री जेल के अंदर में हैं, दूसरी तरफ देखा जाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं, पूछताछ के लिए उनको समन किया जा रहा है। और अगली जो एक कार्रवाई देखा जा रहा है तो उसमें एक नए मंत्री जो अभी हाल फिलहाल में ही वो मंत्रिमंडल में ज्वाइन हुए हैं, उनके खिलाफ भी आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें, खास तौर पर शंकर, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बार बार ये एलिगेशन बीजेपी के खिलाफ लाया कि वो बीजेपी ने CBI ईडी को इस्तेमाल किया है। तो जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था उस टाइम बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी ने। तो इस बार क्या कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है दिल्ली में? ईडी मुख्यालय के बाहर में काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जरूर बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पर आज जिस तरह से हमारे सूत्र ने कंफर्म किया है कि आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, और बाद में जब वो आएंगे उसके बाद उस वक्त में देखा जाएगा कि और जांच एजेंसी के द्वारा किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है। तो फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ जा रहे हैं, जैसा कि हमारे सूत्र ने इस खबर को कंफर्म किया है। जी शंकर, और अगर केजरीवाल को नेक्स्ट जब नया तारीख निर्धारण किया जाएगा, अगर केजरीवाल गिरफ्तार होगा तब मुख्यमंत्री कौन होगा? 3 कैबिनेट मंत्री चर्चा में है इस बार, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ कहना तो फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये मामला पूर्ण तौर पर राजनीतिक मसला है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के द्वारा निश्चित तौर पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी में इन तमाम मसलों पर जो आपका सवाल है एकदम बहुत सटीक सवाल है, और ये दिल्ली की जनता आज इस सवाल का जवाब भी जानना चाहती है कि आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। तो इस मामले को भी लेकर जो पार्टी के अंदर में तमाम जो एक रणनीति वो बनाई जा चुकी है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो शंकर, सौरभ भारद्वाज जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी कहा है कि अगर मतलब ये अगर में ही अटके हुए हैं शंकर, कि अगर ये गिरफ्तार हुआ, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाना पड़ा तो होगा क्या? तो जेल से सरकार चलेगी, ये बात सौरभ भारद्वाज ने बताया है ना शंकर? जी, आपने सही कहा है कि कल इस मामले में सौरभ भारद्वाज का एक स्टेटमेंट आया था। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और इस मामले पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि सवाल तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि और जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जेल से सरकार चलेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही एक हास्यास्पद मामला बनता है कि बड़ा ही एक ऐसा मामला कि उस पर आम लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसी पार्टी जिस पर भरोसा करके दिल्ली के लोगों ने पार्टी को जिताया, और एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनको पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाया, तो कहीं न कहीं उस पार्टी का जो अस्तित्व है आज वो अस्तित्व जो है वो आज खतरे के निशान पर है। तो लोगों के अंदर में सवाल उठना लाजमी है। तो शंकर, इसका प्रभाव
लोकसभा इलेक्शन में भी आएगा दल पर, आम आदमी पार्टी पर? देखिए, निश्चित तौर पे इसका जो एक असर जो है वो आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव है या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी वहां पर कैंडिडेट जो है वहां पे खड़ी कर रही है, तो कहीं कहीं उसका असर वहां पे भी होगा और उनके उम्मीदवारों पे भी होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इन तमाम मसलों पर आगे जो रणनीति है वो बना रही है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल शंकर जी, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपसे विदा लेंगे। आपको शुक्रिया, क्योंकि अभी हमारा एक ब्रेक लेने की वक्त आ चुकी है, तो हम आपसे विदा लेंगे। आपको शुक्रिया, लेकिन आपने जो जानकारी हमें दी এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আমাক আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে আমাক দিলে, আৰু সেই খবৰ অনুপাতে এক বিশ্বস্ত সূত্ৰ অনুসৰি যে আজি ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, আৰু পৰৱৰ্তী সমন কেতিয়া জাৰি কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা ইডিৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জনোৱা হোৱা নাই। যি নহওক, সমগ্ৰ বিষয়টো এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ ৰাজনীতি, দেশৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে। লাইভ আৱাৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।